स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप सभी बच्चे आप लोग अच्छे होंगे। बेटा, इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट प्रोटिस्टा, मोनेरा, फंजाई, प्लेंटी, and today we will discuss about something about the animalia and brief description about the kingdom Plantae. Okay, let's go. Kingdom Animalia. This includes all organisms which are the multicellular eukaryote without cell walls. They are heterotrophs. Again we will look at their subgroup in the later in the section 7.5. आगे चलकर हम लोग एनिमिलिया के किंगडम के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे। अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना किंगडम प्लांटिया। उसके पहले आपको देखिए यहाँ एक चार्ट, फ्लो चार्ट बना हुआ है। किस तरह से बना हुआ है ये देखो। ऑर्गेनिज्म इज डिवाइडेड इनटू द two parts, prokaryote and eukaryotes. Then prokaryote is unicellular organism and example is the Monera kingdom. Okay. In the eukaryotes, it is also divided into the two parts, unicellular and multicellular. Unicellular is the protista, where the single cell organism are present, and in the multicellular organism is divided into the two parts, with the cell wall and the without the cell wall, with the cell wall and without the cell wall. With the cell wall do not perform photosynthesis, it is fungi, okay, and which are able to perform the photosynthesis is known as the Plantae. And we know that eukaryotes have no any cell wall, and so that without the cell wall is the animal. It is the representation of our dividation. एक बार और देख लो। Organism is divided into the two parts, prokaryote and eukaryote. Prokaryote is the unicellular and Monera kingdom in this prokaryotes. Then eukaryote is divided into the two groups, unicellular or multicellular. In the unicellular, here is the kingdom of the protista, which have the single cell, and multicellular is also the two type, with cell wall and the without cell wall. With cell wall, there is also the two groups. Do not perform photosynthesis, it have the kingdom fungi, and other group is the able to perform the photosynthesis, it is put into the kingdom of Plantae, and other is the without the cell wall, it is Animalia. This is the flow chart of our kingdom. Okay. Here is some question about your lesson, and you do in this copy. Okay, in your copy you do all these questions. Let's start our kingdom Plantae. सबसे पहले हम अपने किंगडम Plantae को स्टार्ट करते हैं कि हमारे किंगडम Plantae में क्या क्या होता है. ओके. The first level of classification among plants depend on whether the plant body has well differentiated. सबसे पहला जो ग्रुप है उसको आप किस बेस पर आधार करेंगे जहां आप बॉडी को बांट सकें. जैसे आप किसी भी प्लांट की बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर ही अपना प्लांट किंगडम तैयार करते हैं. ओके. द नेक्स्ट लेवल ऑफ द क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन देयर plant body has a special tissue. Other
टॉपिक क्या होगा आपको प्लांट किंगडम में रखने का कि उनका टिश्यूज़ कैसे हैं, उन प्लांट के टिश्यूज़ कैसे हैं। For the transport of the water and the other substance. Further classification, look at the ability to bear seed. तीसरा क्या है, तीसरा ये चीज़ कि वो प्लांट कैसे सीड को बियरिंग करते हैं, क्या रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं वो, वेदर द सीड आर द इनक्लोज विद इन फ्रूट, या फिर वो प्लांट के जो सीड्स हैं वो कहाँ मौजूद है, वो फ्रूट में मौजूद है या फिर वो डिस्पर्जल के लिए फूलों में मौजूद है। ओके, यानी हमने प्लांट किंगडम को बनाने के लिए क्या क्या बेस बनाया, देयर बॉडी वॉल, ओके, देयर डिस्टिंक्ट पार्ट्स एंड द डिफ्रेंशिएटेड प्लांट बॉडी, देयर स्पेशल टिश्यूज, their work transport of the water and the other substance, and bear seeds, and the seeds are enclosed within fruits. This is the base of our planting kingdom. Okay, अब हम आ जाते हैं, ये तो हो गया किंगडम, अब हम इसके डिवीज़न पे आ जाते हैं, किस किस डिवीज़न में, किस किस डिवीज़न भाग में इसको बांटा गया है। सबसे पहला आता है थैलोफाइट। थैलोफाइट, थैलोफाइट also known as algae, also known as algae. Okay, algae की विशेषता क्या है कि they are the primitive and a simple plant and their body is not differentiated into stem, root and the leaves. ये इसकी खासियत है। सबसे पहली खासियत क्या कि the part of the body of plant is not differentiated into the stem, root and the leaves. Okay, plant do not have well differentiated body design fall in this group. The plant in this group are commonly called algae. These plants are predominantly aquatic. पूरी तरह से algae कहाँ डिपेंडेंट करती है, पानी पर। कहाँ पर डिपेंड करती है, पानी पर। और पानी कौन सा, बोथ मैराइन और फ्रेश वाटर। आप मैराइन और फ्रेश वाटर में अंतर समझते हो ना। फ्रेश वाटर जो है वो रनिंग वाटर होता है रिवर वगैरह का, और जो मैराइन वाटर होता है वो सी वाटर होता है। ओके, हाँ एक चीज़ और, जहाँ पर हम किसी प्लांट को, जैसे हम एल्गी को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते इनटू स्टेम, रूट और लीव्स में, तो ये एक तरह से अनडिवाइडेशन थैलस जैसा बना देता है। आपने काई देखी होगी, है ना, नदियों में, पानी में, ये नहर वहर में भी होती हैं। तो आप अगर उनको चाहें कि इनको हम अच्छी तरह से तोड़ करके बांट दें तो वो टूटने और बांटने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो इसका क्या मतलब है कि ये एक ग्रुप में अटैच है ना, किस में अटैच है, एक ग्रुप में अटैच है। तो ये जो अनडिवाइडेशन फॉर्म है इसको हम बोलते हैं थैलस। क्या बोलते हैं, थैलस। ये जो अनडिवाइडेशन फॉर्म है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलते हैं थैलस। और जो ये मैराइन वाटर में रहती हैं वो क्या है, अधिकतर मैराइन वाटर वाली फ्लोटिंग होती हैं। लेकिन आपने अभी बरसात हो रही है तो बरसात के दिनों के बाद आप देखोगे आपकी दीवारों पर, आपकी छत पर भी काई जम जाती है ना। एल्गी आपके दीवारों, सीढ़ियों, इन सब पर भी जम जाती है। तो ये क्या है, लैंड नियर मॉइस्ट प्लेसेस एल्गी। लैंड नियर मॉइस्ट प्लेसेस एल्गी, नमी वाली जगह पर पैदा हुई एल्गी। अच्छा, यहाँ देखो एल्गी का, कुछ एल्गी हैं यहाँ, इसको हम बोलते हैं यूलोथ्रिक्स। ये है यूलोथ्रिक्स। फिर क्लैडोफोरा, क्या है, क्लैडोफोरा। उसके बाद अल्वा, अल्वा, स्पाइरोगाइरा
and it is the Chara. It is a different type of the algae. This algae is made by you in your copy. Okay. अब यूजुअली क्या होता है, दे हैव द ग्रीन पिगमेंट, algae is in the green of color, but other algae are the blue, no sorry brown और रेड कलर की भी algae होती है. आपने नहरों में जाते हुए देखा होगा ब्राउन कलर की algae मिलती हैं. तो इनके अंदर जो ये पिगमेंट है, ये जो पिगमेंट है कलर का, वो किसका है? क्लोरोफिल का. ओके. चाहे वो रेड हो, चाहे वो ब्राउन हो, चाहे वो पर्पल हो, उसमें अंदर जो कलरिंग पिगमेंट है वो किसकी है? वो क्लोरोफिल की है. और जब आप बड़ी क्लास में पहुंचोगे तो आपको इन सब कलर्स के नाम मिल जाएंगे. ठीक है. इन सब के कलर के नाम हैं, सभी क्लोरोफिल के नाम हैं, सभी क्लोरोफिल जो रेड ब्राउन कलर दे रही हैं इन सब का नाम है. बाय द वे आपको यहाँ पर तो सिर्फ ये पढ़ना है कि जो ग्रीन कलर की एल्गी है, इट हैव द क्लोरोफिल एंड दिस क्लोरोफिल हेल्प देम टू द फोटोसिंथेसिस. ओके. अब एक चीज़ और क्या मिलती है हमें इससे, कि दे आर द ऑटोट्रॉफिक, दे मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड. अपना फूड ये खुद बना लेंगे ना, जब इनके पास क्लोरोफिल है, ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं. दे मेक देयर ओन फूड. एंड अनदर थिंग इज दैट देयर रिजर्व फूड इज नोन एज द स्टार्च. जो एल्गीज का फूड है वो क्या कहलाता है? स्टार्च फॉर्म में रखते हैं. स्टार्च फॉर्म में. फूड किस फॉर्म में होता है? स्टार्च फॉर्म में होता है. फिर आप ये देख रहे हो कि यहाँ देखो स्पाइरो, हम लोग इसको देखते हैं स्पाइरागोरा का. आप ये देखो स्पाइरोगोरा जो है, ये देखो सेल वॉल में बंद है. दिख रहा है ना? सेल वॉल. स्पाइरोगोरा एक तरह से सेल वॉल में बंद है. ये जो सेल वॉल है वो किसकी बनी हुई होती है? ये सेल वॉल बनी होती है सेल्यूलोज की. किसकी बनी हुई है? सेल्यूलोज की. ओके. they have the cellulose cell wall around their cells. फिर mechanical and the conducting tissues are absent. देखो किसी भी तरह का फूड वाला यहाँ कोई वैक्यूल वगैरह मौजूद नहीं है. हाँ ठीक है. और इनका जो रिप्रोडक्शन होता है वो रिप्रोडक्शन इनका दो तरह से होता है. एक तो स्पोरोफाइट जो बीज से होता है, एक गैमेटोफाइट जो इनके गैमेट से होता है. ये सब आप अपनी बड़ी क्लासों में पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पर ये बताना ज़रूरी है कि जो इनकी लाइफ साइकिल चलती है वो दो तरह से चलती है. या तो गैमेटोफाइट चलेगी या तो स्पोरोफाइट चलेगी. गैमेटोफाइट का मतलब क्या है कि ये गैमेट के द्वारा होगी, और स्पोरोफाइट का मतलब क्या है कि वो स्पोर्स के द्वारा होंगी. इनका एग्जाम्पल आप देख ही रहे हो. यूलोथ्रिक्स जो है वो ग्रीन कलर की एल्गी है. ये डायग्राम आप अपनी कॉपी में बना लेंगे, अच्छे से लिख लेंगे. ओके. और बढ़िया करके डायग्राम आप बना दोगे इसका. अब देखो एक चीज़ आपको बता देते हैं कि जो यूलोथ्रिक्स है वो ग्रीन एल्गी है. कैसी एल्गी है? ये ग्रीन एल्गी है. ओके. ये ग्रीन एल्गी है. यूलोथ्रिक्स ग्रीन एल्गी है. क्लैडोफोरा ग्रीन एल्गी है. आपका स्पाइरोगायरा, अल्वा, कारा, ये सब ग्रीन एल्गी होती हैं. ओके. फिर अभी हम क्या देख रहे थे कहीं, कारा, ये सब ग्रीन एल्गी हैं. ओके. चलो आपको ग्रीन एल्गी पढ़नी है. दिस इज़ ऑल अबाउट द एल्गी. यू मेक द नोट about the algae and make these all algae diagram in your copy. Thank you for watching this video.